हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस टाइम आई एम ब्रिंगिंग द ethics case studies for the practice, and these case studies will be very much beneficial for all the students who are appearing for the mains examination in the UPSC or the different PCS examinations. ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे बेसिकली एक एक केस स्टडी को लेंगे और उस पे जो है यहाँ पे क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होना चाहिए मैं आपको उस पे डिस्कशन करूंगा, राइट। Now, this is the first case study what we will going to talk about it. But before we will going to proceed for the case study, this is a brief introduction about myself. My name is Ankur Agarwal. I am a freelance educator. अगर आपको जो यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है then please do subscribe it and press the bell button for the further videos. And this is a telegram link that is अंकुर IAS, जिस पे जो है यहाँ पे आपको और बहुत सारा कंटेंट जो है डेली का करंट अफेयर्स वगैरह जो है इस पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब केस स्टडी का रेलेवेंस क्या होता है, क्यों जो है यहाँ पे यूपीएससी और जो है सिविल सर्विसेज हमसे इतनी या स्टेट सर्विसेज जो है वो हमसे केस स्टडीज पूछते हैं। नाउ बेसिकली केस स्टडी इज आइडियल वे और द क्लासिकल वे टू टेस्ट द कैंडिडेट वैल्यूज एट विच दे विल गोइंग टू सॉल्व द पर्टिकुलर सिचुएशन। जब कभी भी जो है यहाँ पे केस स्टडी दी जाती है, यूपीएससी हमेशा ये जानने की कोशिश करता है या स्टेट पीसीएस भी कि आपकी एज एन ऑफिसर क्या ओपिनियन रहेगी पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। एंड द आंसर वॉट एवर यू विल गोइंग टू गिव, it will going to talk about from both the morality and the ethical perspective. Now morality is which satisfy your individual perspective. ठीक है, जब जो है यहां पे हम यूज करते हैं वर्ड morality and the ethics, morality and the ethics. Now ethics is all about social acceptance, whereas morality is all about इंडिविजुअल जजमेंट। किसी भी फिनोमेना को लेकर हो सकती है वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पे पहली केस स्टडी क्या है। नाउ लेट्स से राकेश इज अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हु enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare scheme meant for the senior citizens. Right? अब क्या जो है यहां पे क्राइटेरिया है जिन जिन को जो है यहां पे बेनिफिट मिलेगा। एक, वो जो है यहां पे 60 साल या उससे ऊपर उम्र के होने चाहिए। बी, दे शुड बिलोंग टू द रिजर्व कम्युनिटी। सी, family income should be less than 1 lakh rupees per annum. D, post treatment prognosis is likely to be high to make a positive difference to the quality of the life of the beneficiary. ठीक है, यानी अगर जो है यहां पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो है यहां पे लाइफ अच्छी हो जाएगी। These are the 4 criteria on the basis of which the government will going to provide the healthcare scheme to the beneficiaries. ठीक है, now one day an old couple visited the Rakesh office with their application. They have been the resident of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes the obstruction in the large intestine. As a consequence, he has a severe abdominal pain frequently that prevent him from doing any physical labor. The couple has no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fees. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges such as the medicine, hospitalization, etc.,
जिसकी जो है यहाँ पे रफली एक्सपेंडिचर कितना है, 1 लाख रुपीज। द कपल फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट क्राइटेरिया बी। नाउ क्राइटेरिया बी क्या है कि आपको रिजर्वेशन में आना चाहिए, ठीक है, जो कि कपल नहीं है। However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. It means, मैं एक बार वापस जो है यहां पे आपको स्लाइड दिखाता हूं। ये देखिए, जो ओल्ड कपल है वो बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, 60 ईयर्स ऑफ एज भी है, फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, और पोस्ट ट्रीटमेंट जो है यहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाएगी। लेकिन जो हमारी बी क्राइटेरिया है, दैट इज ही डू नॉट बिलोंग टू द रिजर्व कम्युनिटी। नाउ इन सच सिनेरियो व्हाट शुड बी डन? ठीक है, और क्वेश्चन का जो है यहां पे हमारे कितने मार्क्स में है, 250 वर्ड्स। तो क्या क्या होना चाहिए? क्या राकेश जो है अपनी ऑनेस्टी को एक साइड रख के उसको अप्रूवल दे देना चाहिए? अगर ऐसा करता है तो ओल्ड कपल में जो है यहां पे उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन राकेश बीइंग एन ऑनेस्ट, जो उसके सबऑर्डिनेट या सुपीरियर उसको विश्वास करते हैं, उनका विश्वास जो है यहां पे खत्म हो जाएगा। और अगर राकेश केवल जो है अपनी ऑनेस्टी और रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके चलता है और चारों क्राइटेरिया को मान के चलता है, तो वो जो कपल है उनके जो एक्सपेंसेस मीट नहीं हो सकते। नाउ व्हाट नीड टू बी डन एंड हाउ द एथिकल वैल्यूज नीड टू बी एडेड इन दिस केस स्टडी? राइट नाउ दिस इज अ सिचुएशन. The case presents the conflict between two foundational values of the civil services. एक क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आ गई, ठीक है, और दूसरी क्या है यहां पे, एम्पैथी एंड कंपैशन, कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के सामने, मुझे पता है जेन्युइन केस है, ठीक है ना। एथिकल डिलेमा क्या आता है? एक, जो मेरे सीनियर्स ने ट्रस्ट जो है मेरे पे रखा हुआ है, राइट, अगर जो है यहां पे मैं उनको इन्फॉर्म किए बिना कपल को स्कीम का बेनिफिट देता हूं, दैट ट्रस्ट विल गोइंग टू रिड्यूस। दूसरा, जो स्कीम है यहां पे उसमें बी ऑप्शन जो है यहां पे फुलफिल नहीं करते, अगर मैं अपनी मनमर्जी से कपल को जो है यहां पे ग्रांट दे देता हूं, तो इंटीग्रिटी ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द स्कीम विल ऑल्सो गोइंग टू गेट डिफॉल्टेड। तीसरा, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है ओल्ड कपल को जो अनरिजर्व कैटेगरी पे है। नाउ सी, इफ राकेश विल गोइंग टू अकोमोडेट द ओल्ड कपल विदाउट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, तो इससे जो है यहां पे जो जॉन रॉल का कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, राइट, दिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ द जॉन रॉल विल गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, और साइमल्टेनियसली हमारी जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो है यहां पे एडहेयर हो जाएगी। लेकिन at the same time, if the accommodation will be done under the scheme without fulfillment of the criteria, इससे होगा क्या? It will destroy the objectivity of Mr. Rakesh. ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो ट्रस्ट है यहां पे उसके सीनियर्स ने रिपोज कर रखा है वो भी जो है यहां पे जो ब्रेक होगा। एट द सेम टाइम जो रिजर्व कैटेगरी है उनके अंदर भी जो है यहां पे डिसकंटेंटमेंट आ सकता है,
कि जब ये स्कीम रिजर्व कैटेगरी के लिए है तो जनरल को क्यों दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि हो सकता है मिस्टर राकेश के रिश्तेदार हो, मिस्टर राकेश जो यहां पे पार्शियलिटी कर रहे हैं। So this will also going to impact the image of the civil servant as being the impartial and the non-partisan. और ये डिसीजन जो है मैक्स वेबर के मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के भी अगेंस्ट जाता है। Hence, what is the best thing what we can do? अब यहां पे राकेश को इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यूज करनी चाहिए। Right? He must express the foundational values of empathy and the compassion within the contour of the legal and the rational bureaucracy. Now see, तीन चीजें आ गई, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, कंपैशन, जॉन वॉल कंसेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मैक्स वेबेरियन कंसेप्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, 10 व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग? Recommend to the concerned ministry authority to amend the criteria of the scheme to fully or partially accommodate the unreserved category as well. ठीक है, मैं being Mr. Rakesh, I can recommend to my seniors or the ministry that sir, some genuine people can be there without reserved category, so some provision can be inserted in that also. दूसरा, I can prepare a detailed report highlighting the need among the unreserved category as a tool of the persuasion. तीसरा, immediate level पे, being a district level officer, I can arrange some financial help to the old couple from the self या family या friends या NGO जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, इससे होगा क्या? मिस्टर राकेश की जो यहां पे कंसाइंस भी रह जाएगी और जो यहां पे ना रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट से जो इस बारे में बात भी की जा सकती है। राइट, सो वी ऑलवेज नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच while dealing with such type of case studies. So 250 वर्ड्स में जो है यहां पे आपसे पूछा गया है, तो पहले आप बताइए कि ओल्ड कपल का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, फिर मिस्टर राकेश के सामने डिलेमा क्या है, और उसके बाद यहां पे सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स। राइट, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन विल गोइंग टू बी देयर फॉर दिस केस स्टडी। ठीक है, एंड बीइंग मिस्टर राकेश, ही मस्ट शो द एटीट्यूड ऑफ द कमिटेड ब्यूरोक्रेट। अब आपको जो है यहां पे लोगों की परवाह है, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एडहेयर करना है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू बैलेंस योर प्रोफेशनल ड्यूटी ऑल्सो एज वेल एज योर ड्यूटी टुवर्ड्स द पब्लिक। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस केस स्टडी। राइट, होप यू हैव अंडरस्टैंडेड द थिंग। राइट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जो है यहां पे आपके सामने और डिफरेंट मैं केस स्टडीज लेके आऊंगा, एंड प्लीज डू लाइक दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।